I'm very happy to be here to meet all of you, dear brothers and sisters. और मैं बहुत ही खुश हूँ अपने प्रिय भाई और बहनों से मिलने के लिए यहाँ पर। That's not just a formal thing I say, I really mean it. और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अर्थ रखता हूँ इसका। Because it's always a joy to meet people who love the Lord. और ये बहुत ही खुशी की बात है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। And especially those who want to obey everything in the Word of God. और ख़ास करके उन लोगों से जो परमेश्वर के वचन में लिखे हुए हर बातों को मानते हैं। We are living in a time when many people have turned away from God's Word. और हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर जा चुके हैं। And where the emphasis on being born again and being filled with the Holy Spirit, that was really true 100 years ago, is not like that today. और उद्धार पाना और पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाना ये करीबन 100 साल पुरानी बात हो चुकी है, जो कि अब बिल्कुल अर्थहीन हो चुका है। About 150 years ago, there were great revivals in some parts of the world. और आज से 100-150 साल पहले संसार के कई जगहों में बहुत बड़ी बेदारी थी। People were really born again. और लोग जो है सचमुच में उन्होंने नया जीवन को पाया था। And really filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भरपूर हुए थे। And really free from the love of money. और जो धन है उसके प्यार से दूर थे। And wanted to sacrifice to serve the Lord. और अपने जीवन को बलिदान देना चाहते थे परमेश्वर की सेवकाई के लिए। And even when I was born again 57 years ago, it was something like that. और 57 साल पहले जब मैंने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, मैं भी ऐसा ही था। But in my own lifetime, I have seen the decline of Christianity going downwards. और मैंने अपने जीवन काल में देखा मसीहत को नीचे जाते हुए। See, I've lived longer than almost everybody here. और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सबसे ज़्यादा उम्र दराज का हूँ मैं। And I've also been a Christian longer than almost everybody here. और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सबसे मसीहत जीवन भी मैंने ज़्यादा अरसे से जिया है। And I know what Christianity was like 57 years ago. और मैं जानता हूँ कि करीबन 57 साल पहले मसीहत क्या होता था। We never had pastors and churches running after money like today. और आज के ज़माने की तरह उस ज़माने में मैंने पासवानों को नहीं देखा धन के पीछे भागते हुए। We never had all these counterfeit fake healings and deception like that then. और धोखा और झूठ मूठ का चंगाई उस ज़माने में नहीं होता था। But it's exactly like the Bible says. लेकिन जैसा पवित्र कलाम कहता है। Let me turn you first of all to 2 Timothy chapter 3. दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय निकालेंगे। These things are written for our instruction. और वहाँ पे कुछ कार्यों को करने के लिए दिया गया है। 2 Timothy 3 verse 1. दूसरा तिमोथी 3 उसका 1। Realize this, that in the last days difficult times will come. पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। We are in the last days. और हम अंत के दिनों में हैं। Everything that I read in the newspapers tells me these are the last days. और जो कुछ मैं अखबार में पढ़ता हूँ वो सब कुछ मेरे को ये बताते हैं कि मैं अंत के दिनों में हूँ। And therefore we have to be more alert than Christians at other times. इसलिए दूसरे समयों से अधिक मसीह होने के कारण हमें और अधिक सतर्क रहना चाहिए। But whenever we read about difficult times or hear about difficult times, we think it refers to persecution. और जब हम मुसीबतों के बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ताड़ना के बारे में हम सोचते हैं। Because the only difficulty that even many Christians think about is financial difficulty or persecution. और मुसीबत के बारे में जब भी कोई मुसीबत लोग सोचते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं ताड़ना आना। So if I don't have financial difficulty and I don't have persecution, then I think that's not a difficult time. तो अगर जो हम पर कोई आक्रमण नहीं कर रहा है तो हम ऐसे सोचते हैं कि ये तकलीफ का समय नहीं है। But the difficult time spoken of here is not about financial money difficulties. और यहाँ पे जो कठिन समय है वो आर्थिक परिस्थिति के बारे में नहीं बता रहा है। It's talking about how difficult it will be to be a Christian when other people
pretend to be Christians but are not real Christians. और यहाँ पे कठिन समय के बारे में ये बता रहे हैं जहाँ पर मसीह लोग जो है वो नाटक करते हैं मसीह होने का और वो असलियत में मसीह नहीं है। It's not referring to persecution at all. और ये जो है किसी और से आक्रमण के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। See, it says here, why will it be difficult in the last days? और कठिन समय अंत के दिनों में क्यों होगा? Because, verse 5, people will have a form of godliness without its power. और क्योंकि 5 में लिखा है वे भक्ति का बेश तो धरेंगे करके। That means they'll have the sheep's clothing, इसका मतलब वो भेड़ के जो वस्त्र है उसको पहन लेंगे, but inside it'll be a wolf. लेकिन अंदर भेड़िए होंगे। Not just preachers, a lot of Christians. ना केवल प्रचारक, बहुत सारे मसीह लोग भी। There'll be one thing on the outside, but another thing on the inside. बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और रहेंगे वो लोग। And there'll be many people like that. और वैसे बहुत सारे लोग होंगे। And they'll be mingling with the wholehearted believers in the church. और जो पूर्ण तौर से मसीह लोग हैं उनके साथ वो जुड़ जाएंगे। And that's why it'll be difficult to be a Christian. और इस वजह से मसीह रहना बहुत मुश्किल होगा। See, in all these things listed here in verse 2, 3 and 4. और यहाँ पे दूसरे वचन तीसरे वचन में यहाँ पे लिखाया हुआ है। These are all things that were always true about human beings in all these 6,000 years. और ये जो बातें लिखी हुई हैं ये बिल्कुल सच है पूरे 6,000 सालों से मनुष्य के जीवन में। Look at it. यहाँ पे दिखेगा, From the time of Adam, all human beings have been lovers of self. और आदम के ज़माने से जब हम देखते हैं कि सब अपने आप से प्रेम करने यानी कि स्वार्थीपन होगा उनके अंदर। Next thing, from the time of Adam, every human being has been a lover of material things. और आदम के ज़माने से लेके अब तक सब व्यक्ति जो है वो लोभी होंगे। Every human being has been boastful, arrogant, revilers. और हर एक व्यक्ति जो है उस जमाने से लेके डींगबार, अभिमानी और निंदक होंगे। Disobedient to parents. माता पिता की आज्ञा टालने वाले, Ungrateful. कृतज्ञ, Unholy. अपवित्र, Unloving. दया रहित, Irreconcilable. और क्षमा रहित, Malicious gossips. और दोष लगाने वाले, Without self-control. असंयमी, Brutal haters of good. कठोर, भले के बैरी, Treacherous. विश्वासघाती, Reckless, conceited. ढीठ और घमंडी, Lovers of pleasure more than lovers of God. और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। Everybody in the world is like that. और संसार भर में सब लोग ऐसे ही हैं From the time of Adam. आदम के जमाने से। Then why is it specially written here the last days? फिर ये अंतिम दिनों के बारे में यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? Because there will be people who claim to be born again but who still have these qualities. क्योंकि अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि हमने उद्धार पाया, नया जन्म पाया है, लेकिन वो ये स्वभाव उनके अंदर होगा। So the distinction between those who are not born again and those who are born again will gradually be rubbed out. तो जो भिन्नता है यानी कि नया जन्म पाए और ना नया जन्म पाए हुए लोगों के बीच का जो भिन्नता है उसको मिटा दिया जाएगा। You know, in many main roads you have a yellow line down the middle of the road to show which way traffic going this way and that way. और मेन रोड में आपने देखा होगा पीली रंग की जो है लकीर खींची होगी ताकि वो बताता है कि इस दिशा की ओर या दूसरी दिशा की ओर। In some places after many years that yellow line gets rubbed out. और कई जगह में सड़कों में जो है कई सालों के बीतने के बाद पीला लकीर मिट जाता है। There are no more lanes there. उसके बाद कोई लेन नहीं रहता। And cars can go here and there and it's confusion. तो कार जो है कहीं पे भी जा सकता है और बहुत सारा वहाँ पे A lane where once upon a time cars were only going this way, now cars are coming the opposite way also. पहले एक जमाने में जो है दूसरी दिशा में जाता होगा लेकिन अभी लकीर मिटने के कारण दूसरी दिशा से गाड़ियां आ जाती है। Because this yellow line has been rubbed out. क्योंकि जो पीली लकीर है वो मिट चुका है। There was a time when it became a little clear. This is the way Christians are going and this is the way non-Christians are going. पहले जमाने में जब लकीर था तो साफ सुथरे तरीके से समझ में आता था कि ये यहाँ को आना है और दूसरा दूसरी तरफ जाना It है। says in the last days that distinction will disappear. तो अंतिम दिनों में ये जो भिन्नता है वो मिट जाएगा। People will have all these qualities, और लोगों के अंदर ये सब स्वभाव रहेंगे, all these bad qualities, और ये सब बुरे स्वभाव रहेंगे। but verse 5, they will still hold on to a form of godliness. लेकिन वो 5 में लिखा है कि ऐसों से परे रहना और हमें उसको थाम कर रहना, उस पवित्रता को थाम के रहना है। Holding on to a form of godliness means they will be holding the right doctrine.
यानी कि सही सिद्धांत को हमें झगड़े रहना है। You ask them, do you believe Jesus Christ is the savior of the world? और आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार का उद्धार करता है। Yes. हाँ। Do you believe he's coming back? और वो क्या वापस आएगा? Yes. हाँ। You believe there's no other way of salvation? और आपको विश्वास करना है कि और कोई मार्ग नहीं है उद्धार का? Yes. हाँ। Do you believe in being filled with the Holy Spirit? क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के बारे में? Some of them even speak in tongues. और कई सारे लोग जो हैं वो अन्य भाषा बोलते हैं, They're not born again. लेकिन वो उन्होंने नया जन्म नहीं पाया। I have myself met people who speak in tongues who are not born again, who claim to be Christians. और मैंने खुद अपने जीवन में देखा है जो कि अन्य भाषा बोलते हैं और बोलते हैं कि हमने उद्धार पाया, लेकिन उन्होंने कभी नया जन्म नहीं पाया। This is a form of godliness. और ये एक तरह का अभक्ति का एक चिन्ह है। Is the genuine gift counterfeited? और एक है असली जो परमेश्वर की ओर से तोहफा, और दूसरा है नकली। And because there'll be so many people like that sitting in the midst of a good church, और ऐसे बहुत सारे लोग अच्छी कलीसिया में होने के कारण, and listen to this, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, most Christians don't have the discernment to know who is a genuine believer and who is not. और ज़्यादातर मसीह लोगों के अंदर ये परखने की सामर्थ्य नहीं है कि कौन असली है और कौन झूठा है। I remember one person who was in our church for some time in Bangalore. और बेंगलोर की कलीसिया में मुझे याद है एक व्यक्ति थे, But after observing him, you know, we meet these people mostly only on Sunday. और ज़्यादातर हम लोग जो है इनसे केवल इतवार के दिन मुलाकात करते हैं। After observing him for 5 or 6 months, और 5-6 महीने तक उसको देखने के बाद one day I sat with him and I told him, brother, you are not born again. मैंने उनसे कहा कि भाई आपने उद्धार नहीं पाया है, I want to tell you the truth because I don't want your blood on my hands. और मैं सच्चाई को बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके लहू को अपने हाथ में नहीं लगाना चाहता। I don't want you to stand before the Lord one day and say, brother Zach said I was born again. क्योंकि प्रभु के सामने खड़े होकर मैं ये नहीं बोलना चाहता कि क्या कहते हैं वो कि ब्रदर जैक ने मुझे नहीं बताया। I have seen many people like this और मैंने बहुत सारे लोगों को with देखा a है form of godliness, कि उनके अंदर जो है वो भक्ति दिखाते हैं, but that inner power लेकिन जो अंदर की जो सामर्थ है, that makes you Christ-like, और वो जो सामर्थ है वो आपको मसीहत की तरह बनाता है, makes you humble, वो आपको नम्र बनाता है। godly in our private life. यानी कि जो हमारा जो निजी जीवन है उसमें मसीहत होना चाहिए, The power that gives us purity in our thought life. और वो सामर्थ जो हमारे सोच विचार में पवित्रता करता है, The power that makes us control our tongue in what we speak. और वो सामर्थ जो हम बातचीत करते हैं उसमें नियंत्रण करने की शक्ति, That power will not be there. और वो सामर्थ नहीं रहेगा, But the form will be there. लेकिन उसका शक्ल में रहेगा। The form means the sheep's clothing. उसका मतलब यह है कि भेड़ का जो वस्त्र है वैसा पहनना। That means if you make a doctrinal statement of our church, they will tick everything. Yes, 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 I agree with all of this. इसका अर्थ यह है कि कलीसिया के जो सिद्धांत है उसको बताएंगे, हाँ इस पर मैं विश्वास करता हूँ, तो सब टिक लगा देंगे। But do you know the doctrinal statement of our church? Even the devil can sign it. He agrees with all of that. हाँ, जो हमारी कलीसिया का जो सिद्धांत है वो शैतान भी जानता है, He knows there's a Trinity. और वो भी जो है त्रिएकता पर विश्वास He करता knows है, Jesus Christ is the only Savior of the world. और वो खुद जानता है कि प्रभु यीशु मसीह केवल एकमात्र उद्धार करता He है, knows Jesus rose from the dead. और वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा, He knows we must be filled with the Holy Spirit. और वो जानता है कि हमें पवित्र आत्मा से भरना है, He knows that Christ is coming back. और वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा। You tell me one true doctrine in the Bible which the devil doesn't believe. आप एक भी ऐसा सच्चा सिद्धांत बताए जो शैतान नहीं जानता हो, Everything he believes. और वो सब कुछ विश्वास करता The है, devil even believes that women should cover their heads when they pray and prophesy. और जब वो भविष्यवाणी करते हैं वो लोग भी यही चीज विश्वास करते हैं। The devil believes everything, जो शैतान है वो सब पर विश्वास करता है, but he's not saved. लेकिन उसने उद्धार नहीं पाया। He can be full of sin and believe all the doctrines. जो है वो पूरी तौर से पाप में रह सकता है, लेकिन हर एक सिद्धांत पर विश्वास कर सकता है। And the Bible says that when Satan appears, he comes as an angel of light. और बाइबल कहती है कि जो शैतान वो प्रकट होता है तो वो स्वर्गदूत रोशनी की या ज्योति के स्वर्गदूत की तरह जो है प्रकट होता है। So why can't we have human beings who look like angels but who are not born again? तो फिर इंसान क्यों नहीं हो सकता स्वर्गदूत की तरह, जैसे कि वो कभी लेकिन उसने कभी उद्धार नहीं पाया हो। Form of godliness. यानी कि भक्ति का रूप धारण करना।
So why does it say in the last days it will be difficult? Living Bible says it will be difficult to be a Christian in the last days. और लिविंग बाइबल बताती है कि अंतिम दिनों में मसीहत का जीवन जीना कठिन होगा। Why should it be difficult to be a Christian? और मसीहत का जीवन जीना कठिन क्यों होगा? Not persecution. और वहां पे ये नहीं कि आक्रमण के बारे में नहीं बता रहा, That is another reason. वो दूसरा एक कारण है। Like in China, it's a little difficult to be a Christian और चाइना में जो है मसीहत होके जीना मुश्किल है, because there's persecution there. क्योंकि वहां पे लोग जो है उन पर आक्रमण करते हैं। But in India, at least in many parts of India, there's not that persecution today against Christians. लेकिन मसीहत होकर भारत में जीना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतना But ताड़ना नहीं it आता। will still be difficult in India. लेकिन भारत में भी बहुत मुश्किल हो सकता है। And if you ask me, I think it is more difficult in India to be a Christian than in China. और लेकिन अगर जो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि भारत में मसीहत होकर जीना मुश्किल है चाइना से Because अधिक। wherever there's persecution, the line between Christian and non-Christian is very clear. क्योंकि जहां कहीं पे भी मसीही लोगों के ऊपर आक्रमण होता है तो वहां पे वो लकीर जो है साफ means- सुथरे तरीके से नजर आता है। That yellow line in the middle of the road is very clear. जैसे कि सड़क के बीच में जो लकीर होती है पीले रंग की, वो साफ सुथरे तरीके से नजर आता है। These are the ones who are following Jesus. These are the ones who are not following Jesus. ये लोग हैं जो मसीह को नहीं, उसके चेले नहीं है, और दूसरे मसीह के But- चेले हैं। Where there's no persecution, और जहां पर ताड़ना नहीं होता that line is rubbed out. तो वो जो लकीर है वो मिट चुका है। And then it is very difficult to recognize who is a true Christian and who is not. वहां पे असली और नकली जो मसीह लोग हैं उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है, That requires discernment. और उसके लिए हमारे अंदर परख की आत्मा होनी चाहिए। Everybody who says, I've accepted Jesus in my Savior, is not really born again. और हर कोई ऐसा कहता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसने नया जन्म पाया हुआ अवश्य नहीं है, Because they don't know Jesus. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। They know about Jesus, but they don't know Him. वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। See, the relationship between Jesus and us is we are like the wife to a husband. और जो रिश्ता प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में है वो पति और पत्नी के रिश्ते के समान है। So, you can know about a man very well, but you know he's not your husband. और आप एक पुरुष के बारे में जानते होंगे लेकिन वो आपका पति नहीं। You can know everything about him, आप उसके बारे में सब कुछ जानते but he's हैं not your husband. लेकिन वो आपका पति नहीं। So, you don't really know him intimately. तो आप उनको जो है नजदीकी से नहीं जानते। So, what I seek to find out among people who say they are believers is, do they know Jesus? और जो बोलते हैं कि मैं मसीही हूँ, तो मैं उनके अंदर ये देखता हूँ कि क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं। When I talk to them, do I sense that this person really knows Jesus? जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे ये मालूम करना है कि क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है या नहीं। Not does he know the doctrine, ना कि वो सिद्धांतों को जानता or है, does he come to our church? क्या या फिर वो हमारी कलीसिया में आता है। See, a lot of people come to CFC because they say that's a good church to go to. और बहुत सारे लोग CFC में आते हैं क्योंकि CFC एक अच्छा कलीसिया है, It's a great church because they don't take an offering. और वो बहुत अच्छा कलीसिया है क्योंकि वहाँ पे भेंट नहीं लिया So जाता है। I don't have to give any money. और मैं इससे सहमत नहीं हूँ पैसे से। And if I have daughters, I don't have to pay a dowry. That's another good thing. और अगर जो मेरे पास डॉलर्स है तो मुझे भेंट नहीं देना पड़ेगा, ये अच्छी बात है। So people come to the church for various reasons. और कलीसिया में लोग जो है भिन्न भिन्न कारणों से आना पसंद करते हैं। They're not really knowing Jesus. वो असलियत में प्रभु यीशु मसीह को नहीं And जानते। then when you have a mixture of people like that and people who are really born again, और जब एक मिक्सचर रहता है जहाँ पे मसीह को जानने वाले और अनजान लोग आते हैं, you don't know who is who. तो आप नहीं पहचान पाते कि कौन क्या है। And I want to say that is happening in every CFC church in India. और मैं बताना चाहता हूँ ये हर एक CFC कलीसिया जो भारत के अंदर है उसमें ऐसा होता है। That's how the devil infiltrates to corrupt the testimony. और इस तरीके से शैतान घुस कर जो है अच्छी गवाहियों को बिगाड़ने की कोशिश करता है। And that's why elders have to be very alert. इसलिए वृद्ध लोग यानी कि बुजुर्ग लोग हैं उनको बहुत सावधान बरतना चाहिए। Most of the people in the church are not spiritual. और ज्यादातर कलीसिया के अंदर के लोग वो आत्मिक नहीं है, So they don't know who is really loving the Lord and who is not. और इसलिए वो पहचान नहीं पाते कि कौन असलियत में परमेश्वर से प्रेम करता है और कौन नहीं। And among the young people, they think, yeah, all the young people here are really loving the Lord. और कई जवान लोग ऐसे सोचते हैं कि यहाँ के हर एक जवान व्यक्ति जो है परमेश्वर से प्रेम करते हैं, And they mingle freely with one another फिर वो एक दूसरे से जो है बात करने लग जाते हैं, and they go into wrong ways. फिर वो गलत मार्ग में भटक जाते हैं।
They pick up habits that some of these other half converted young people have. और जो आधे अधूरे नए जन्म पाए हुए लोगों की आदतों को वो अपने जीवन में ले लेते हैं। People who never watched dirty movies start watching movies which are not really dirty but which corrupt us. और जो कि बिल्कुल गंदे फिल्मों को नहीं देखते थे, आजकल वो थोड़े थोड़े से जिसमें गंदगी है वो देखने लगे। And it's just a slow drift. Gradually they go right down to the bottom. और इस प्रकार से वो धीरे धीरे खिसकने लगते हैं और वो बिल्कुल गहराई की ओर उतर जाते हैं। See, if you're white, the devil doesn't suddenly paint you black. और अगर जो मान लो आपके ऊपर सफेद रंग लगा हुआ है तो एक शैतान एकदम से आपके ऊपर काला रंग नहीं डालेगा। It'll start with a little dot. वो छोटे से एक दाग से शुरू करेगा And little by little make you completely black. और उसके बाद वो फैलाता जाएगा और फिर आपको पूरे जो है काला कर देगा। I can't stop that. और मैं उससे रुक नहीं पा रहा हूँ But I can warn you. और मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। What shall I say? मुझे क्या कहना है? Don't think that everybody in your church who says they're born again is born again. और कभी भी ऐसा ना सोचे कि जो आपके कलीसिया में बोलता है कि मैंने नया जन्म पाया है वो असलियत में उन्होंने नया जन्म पाया है। Because the Bible says people will have a form of godliness without the power of godliness. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के जो भक्ति का बेज धरेंगे लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं होगा उनके They अंदर will speak the right language, और वो सही भाषा का उपयोग करेंगे but that won't be their life. लेकिन उनका जीवन वैसा नहीं होगा। Our life is manifested in our home, और हमारा जो जीवन है वो हमारे घर के अंदर प्रकट होगा, in our place of work. जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ प्रकट होगा। So if you really want to know what your life is like, और अगर जो आप असलियत में जानना चाहते हैं आपका जीवन किस प्रकार का है, ask yourself how you speak to your wife and your husband at home. तो आप अपने आप से पूछें कि आप अपने पति या पत्नी से किस प्रकार से बात करते हैं। How upright and honest you are in your business and in your office. और आप अपने ऑफिस में अपने व्यवसाय में किस प्रकार से आप धार्मिक हैं। Then you will know whether you have the power of godliness. तब आप समझ जाएंगे कि आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। But if you only evaluate yourself by what other people in the church think about you, लेकिन अगर जो आप अपना अनुमान जो लोग आपके कलीसिया में हैं वो कैसा सोचते हैं उसके हिसाब से लगाएंगे, and you have fooled everybody in the church that you're a very godly person, तो अगर जो आप दूसरों को धोखा देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, तो समझ सकते हैं कि आप जो है परमेश्वर के भक्त नहीं हैं। you're living in a world of self-deception. तो आप अपने आप को धोखा देने वाले संसार में जी रहे हैं। And one day the light Jesus comes, और एक दिन जो है प्रभु यीशु मसीह आएगा, and in that light you will discover that you only have a form of godliness. तब आप उस रोशनी में पहचानेंगे कि केवल आपने भेष को धारण किया हुआ है। So I'm not telling only such people to wake up and be ready for the coming of the Lord. तो मैं केवल उन लोगों को सावधान करके उनको जागने के लिए नहीं कह रहा कि वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जाग जाएं। I think of the wonderful, sincere brothers and sisters there are in every CFC church. और मैं उन भाइयों और बहनों को भी जानता हूं जो बिल्कुल वफादार है CFC कलीसिया के अंदर। I want to warn you, it's going to be difficult to be a Christian in the last days. और मैं उनको सावधान करना चाहता हूं कि अंत के दिनों में मसीहत होकर जीना बहुत कठिन है। Don't blindly believe that everybody sitting around you is a wholehearted Christian. और एकदम आंख मूंद कर ये विश्वास ना करें कि आपके चारों तरफ जो बैठे हैं वो पूर्ण तौर से नया जीवन पाए हुए लोग हैं। Some of them may only have a form of godliness. और कई लोगों ने सिर्फ भक्ति का वेश धारण किया होगा। You say, how shall we know? और आप पूछेंगे कि कैसे हम जान सकते हैं? I say, Jesus once said, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. एक बार प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि आपके जो भीतर आपका हृदय जो भरपूर होकर उंडलता है वो मुंह से निकलता है। Do you all know that verse? क्या आप लोगों को वचन जानना है? Matthew chapter 12. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय The last part of verse 34. और 34 का आखिरी वचन। The mouth speaks out of that which fills the heart. 12:34. हाँ, यहाँ लिखा है क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। So many times we are very careful and guarded in what we speak. और कई बार हम बहुत सावधान होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं क्या हम बोल रहे हैं। And religious people can be very careful when they are speaking to others in the church
that we must speak religious things and Christian things. और जो धार्मिक लोग होते हैं वो बहुत सावधानी बरतते हैं कि दूसरे विश्वासियों के साथ हमें जो है धार्मिक तौर से बात करना है। So you can't judge a person by that because they're very careful at such times. और ऐसे जो सावधानी बरत कर बात करते हैं उनका आप न्याय नहीं कर सकते। But when you are free to speak with someone, लेकिन आप बिल्कुल एकदम आज़ाद होते हैं दूसरों से बात करने के लिए, you're not guarded, जब आप सावधान नहीं रहते, then what comes out of your mouth? लेकिन उस समय आपके मुंह से क्या निकलता है, That is the real person you are. और वही असली व्यक्ति हो आप। You young people, when you are in the midst of worldly young people, हाँ, आप जवान लोग जब आप संसारिक लोगों के बीच में होते हैं, what comes out of your mouth? उस समय आपके मुंह से क्या निकलता That है, is what is in your heart. और वही आपके हृदय में, वही आपके भीतर है। And you married people, और जो विवाहित लोग हैं, what comes out of your heart in your home? और आपके घर में जब आप होते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता That है, is a revelation of what you really are. और वही प्रकाशन है कि आप क्या हो। Not what you speak in the church on Sunday. और इतवार के दिन कलीसिया के भीतर आप क्या बोलते हो वो नहीं, Because there we are guarded and we filter things that come out of our mouth that we don't say wrong things. क्योंकि उस समय आप बहुत सावधानी बरतते हो और ध्यान देते हो कि कोई भी गलत चीज आपके मुंह से ना निकले। But when we are free with somebody, the heart flows out. और जैसे ही आप किसी के साथ जो है एकदम खुले रहते हैं, उस समय हृदय के अंदर जो भरा रहता है वो बाहर आता है। I'll tell you, it's the same rule for me as for you. और वही नियम मेरे साथ भी लागू होता है। I do not examine myself by what I preach in the pulpit or what I speak after the meeting is over. और मैं यहाँ पे प्रचार क्या कर रहा हूँ या मीटिंग के अंत में क्या कर रहा हूँ, क्या कहता हूँ, उसके द्वारा मैं अनुमान नहीं लगा सकता या न्याय नहीं कर सकता। Because that is, we always speak religious stuff. क्योंकि उस समय हम धार्मिक बातें करते हैं। I evaluate myself by how do I speak to my wife at home. और मैं अपनी जांच पड़ताल जो है इस तरीके से करता हूँ कि मैं घर में अपनी बीवी से कैसे बातें करता हूँ। How will I speak to a auto rickshaw driver who tries to cheat me? या ऑटो रिक्शा ड्राइवर से किस प्रकार से बात करता हूँ जो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है। Or a porter in the railway station who argues with me. या फिर हमारी जो कि रेलवे स्टेशन में रहता है उससे कैसे बातें करता हूँ। Or at the petrol bunk, if someone accidentally spills oil on my pant, how do I speak to him? या फिर पेट्रोल बंक में जो है वहाँ पे कोई मेरे पैंट पे पेट्रोल डाल दे तो उस समय किस प्रकार से मैं बातें करता हूँ। Those are the times I find out what I am really like. और वही समय है जहाँ पे मैं अपने आप को जान सकता हूँ कि मैं असलियत में क्या हूँ। And I know in the past I have failed. और मैं जानता हूँ कि पूर्व काल में मैं उसमें विफल रहा। Every time I have failed, I've repented and wept. और जब कभी मैं पराजित हुआ मैं रोया और मैंने पश्चाताप And किया asked God to eliminate that from my life. और मैंने परमेश्वर से कहा कि ये कमजोरी मेरे जीवन से दूर कर। And when God has seen my earnestness and my eagerness to be free from sin when nobody is watching me, इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने उस मेहनत को देखा या मेरे इच्छा को देखा जब कोई मुझे देख नहीं रहा, उस समय मैं अपने पाप को दूर करने की कोशिश करता He हूँ। saw me weeping about sins which nobody saw. और वो जो है रो रहा है उस पाप के लिए जो किसी ने देखा नहीं। That is when God saw I was serious about being free from sin. और वो है परमेश्वर उसको जो है गंभीरता के लिए लेता है कि ये व्यक्ति असलियत में पाप से मुक्ति पाना चाहता है। Otherwise, I also had a form of godliness. नहीं तो मैं भी उसी धार्मिकता का भेष धरता हूँ। Even after being born again. और मैं जो है बिल्कुल नया जन्म नहीं पाया। That is how I know from my own experience how easy it is to deceive other Christians. तो मैं अपने अनुभव से जान जाता हूँ कि कितना आसान है दूसरे लोगों को जो है धोखा देना। But I thank God He changed my life. लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल डाला। Because I was fed up of my hypocrisy. क्योंकि मैं अपने झूठे दिखावे से जो है मैं बहुत तंग आ चुका था। If you are fed up of your hypocrisy, God will set you free. अगर जो आप अपने झूठे दिखावे से अगर जो छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर छुटकारा देगा। In the Old Testament, the number one sins were murder and adultery. और पुराने नियम में देखते हैं कि खून करना या फिर व्यभिचार करना यही सबसे बड़े पाप होते थे। But in the New Testament, लेकिन नए नियम में when Jesus hardly ever spoke about murder and adultery, और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कम बार जो है खून करना या फिर व्यभिचार के बारे He में बात spoke की। about hypocrisy and pride. उसने जो है घमंड के बारे में और अपना दिखावा दिखाने के बारे में बात किया है। Who did Jesus condemn the most when He was on earth? सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह ने किस पर दोष लगाया? Not the murderers and thieves and adulterers, खूनी, चोरी और व्यभिचारी के ऊपर नहीं,
There were crooked tax collectors like Zacchaeus. He went to their house. और वहाँ पे जो है टैक्स लेने वाले लोग थे, उनके साथ प्रभु यीशु मसीह गया He even selected one tax collector called Matthew to be his disciple. और खुद जो है प्रभु यीशु मसीह ने एक जो चुंगी लेने वाला है उसको अपना चेला बनाया, Because they were willing to change. क्योंकि वो तैयार थे बदलने के लिए। But when it came to the Pharisees, लेकिन फरीसियों के बारे में आया तो he condemned the Pharisees for basically two sins. और दो पाप के लिए जो है उनको जो है दोषी ठहराया। He didn't say you murderers और उसने ये नहीं कहा कि तुम खूनी or you adulterers. और तुम व्यभिचारी हो, The Pharisees were not murderers or adulterers. क्योंकि फरीसी लोग जो है वो व्यभिचारी और खूनी नहीं थे। You people sitting here, you are not murderers or adulterers. और आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप खूनी या व्यभिचारी नहीं हो। But what did he say to the Pharisees? लेकिन फरीसियों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा You hypocrites. कि ढोंगी, And the word hypocrite means actor. या ढोंगी का मतलब ये है कि आप जो दिखावा कर रहे हैं, Those who act holy, आप जो है नाटक कर रहे हैं पवित्र होने का, who speak holy language, और आप पवित्र जो भाषा को उपयोग में लाते हैं, but are something quite different in private. और जो निजी Private जीवन life, they are different. जो आप निजी जीवन में वैसा नहीं करते हैं। Like some of these Hollywood actors, जैसे कि हॉलीवुड अभिनय करने वाले, you can act like Moses in a movie. और वो अभिनय करते हैं मूसा की तरह, But in his private life, he may have divorced 3-4 times and drunkard and gambler and all that. लेकिन असलियत में देखे तो वो 3-4 बार शादी कर चुका है, डिवोर्स दे चुका है, And next day he again comes for acting, he's again Moses. और अगले दिन वो फिर से जो है अभिनय करने के लिए मूसा बन जाता है। Exactly how some Christians are. That is how some Christians are. हाँ, कई मसीह लोग भी इसी प्रकार से हैं। That is why the Bible says it's very difficult to be a Christian in the last days. और इसलिए पवित्र कलाम बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में बहुत ही Because, कठिन है मसीह होकर जीना। You have this mixed multitude all calling themselves Christians. और इस प्रकार का मिश्रण जो है बना हुआ है जहाँ पे लोग कहते हैं कि हम मसीह लोग हैं, It's light and darkness mingling together. यानी कि रोशनी और अंधकार एक साथ मिला हुआ है, And we think everything is light. और हम सोचते हैं कि सब रोशनी है। It's not true. ये सच्चाई नहीं। So that's why we have to be very, very alert in the last days. इसलिए अंत के दिनों में हमें बहुत सावधान रहना है। It says in Jude, in the book of Jude, और यहूदा की किताब में लिखा हुआ है, no, this is in the first century when the apostles were still alive. और पहली शताब्दी में जब चेले लोग जीवित थे, Even at that time, और उस समय भी these crooks came into the church. और इस तरह के लोग जो हैं कलीसिया में थे। But it's going to be much worse in the last days. लेकिन अंत के दिनों में बहुत भयंकर तरीके से बढ़ेगा, Because there will not be that type of fiery, holy leadership in the last days. क्योंकि अंत के दिनों में आग से भरे हुए अगुवे लोग नहीं होंगे। And it's Jude says, और यहूदा की किताब में लिखा है, पत्री में read लिखा है, these words in the 4th verse of his letter. और पहले अध्याय के 4था वचन पढ़ते हैं। Certain persons have crept in unnoticed. क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य छुपके से हम में आ मिले हैं। How does a person creep in unnoticed into a church? देखिए किस प्रकार से बगैर जाने जो है वो मनुष्य कलीसिया के अंदर छुपके से घुसता है। These are people, verse 4, who have turned the grace of God into licentiousness. और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं। That means, you know, licentiousness is from the English word license. और ये जो वर्ड है, शब्द है लूचपन, वो अंग्रेजी शब्द जो लाइसेंस से आया है। You know, like you get a driving license, जिस प्रकार से हमारे पास ड्राइविंग का लाइसेंस रहता है, then you can drive. तभी आप गाड़ी चला सकते So हैं। what does it mean? They've turned the grace of God into licentiousness. यानी कि जो परमेश्वर के अनुग्रह है उसको लूचपन में किस That तरह से means बदला। they've taken the grace of God like a license. Now I can commit sin. तो उन्होंने जो परमेश्वर के अनुग्रह को लाइसेंस की तौर से ले लिया है कि अब मैं पाप कर सकता हूँ। Like you get a license to drive. जिस प्रकार से गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस मिलता है, Grace of God means license to sin. इस प्रकार से जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो हमारे लिए लाइसेंस है पाप करने के Under लिए। the law, you could not do it because you'll be punished, you'll be killed sometimes. और व्यवस्था के अधीन रहकर आप नहीं कर सकते क्योंकि उसके अधीन में आपको दंड मिलेगा। In the law, if you committed murder, you were killed.
अगर जो व्यवस्था के अधीन आप रहोगे, अगर जो आप किसी का खून करते हैं तो आपको भी मार डाला जाएगा। If you committed adultery, you were stoned to death. अगर जो आप व्यभिचार करते हैं तो आपको पथरवाह किया जाएगा। But now we are under grace. लेकिन अब आप अनुग्रह में हैं। Grace means you can sin. अनुग्रह का अर्थ है आप पाप कर सकते हैं। Just say one sentence, Lord, please forgive me. एक शब्द कहें कि परमेश्वर कृपया करके मुझे क्षमा करें Forgiven, blotted out. और माफ कर दीजिए, और फिर Now निकल it गए is just as if I've never sinned. और अपने आप को जो है न्याय चुकाया, Tomorrow I go and do again same thing. और फिर कल से फिर वही पे जा रहा हूँ। But I've got this license. तो मेरे को लाइसेंस मिला है, Grace. अनुग्रह, That is false grace. और वो एक नकली अनुग्रह है, That's not the meaning of grace. और ये अनुग्रह का अर्थ नहीं। So these people have crept in unnoticed into the church. और वो इस प्रकार से कलीसिया में घुस गए हैं छुपके से, Because very often the leaders don't understand what grace is. क्योंकि अनुग्रह के बारे में खुद अगुवे लोग नहीं पहचान पाए। What is the true grace of God? असली परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? See Romans 6:14. रोमियो 6 उसका 14 देखिएगा। Romans 6:14 is a great verse that teaches what the true grace of God is. और रोमियो 6 उसका 14 जो है असली अनुग्रह के बारे में सिखाता है। It's very clear. यहाँ पे बहुत ही साफ सुथरे लफ्जों में लिखा है, I'll read it to you. यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ। And I believe even a 10-year-old here can answer this question. और मैं विश्वास करता हूँ कि 10 साल का एक बालक भी जो है इसका जवाब It दे is सकता such है। a simple statement. ये बिल्कुल साधारण सा एक यहाँ पे वचन दिया है When you are under grace कि कब तुम अनुग्रह के अधीन हो and not under law, और कब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, the proof is और उसका जो यहाँ that पे sin will not be able to rule over you. इसका अर्थ यह है कि जो पाप है वो आपके ऊपर काबू नहीं कर सकता, नियंत्रण नहीं कर That is सकता, the true grace of God. और वही परमेश्वर का असली अनुग्रह है। So according to this verse, और यहाँ पे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, if sin rules over you, you're under law. अगर जो पाप आपके ऊपर प्रभुता करता है, इसका मतलब आप व्यवस्था के अधीन हो। If sin cannot rule over you, then you're under grace. अगर जो व्यवस्था आपके अधीन नहीं है, यानी कि आपके ऊपर प्रभुता नहीं करता है, तो आप अनुग्रह के अधीन हो। You read that verse and tell me if you get any other meaning of that verse. ये वचन पढ़ने के बाद क्या आपको कोई और अर्थ समझ में आता है या कोई और अर्थ मिलता है? Sin cannot be master over you because you're not under law now. पाप जो है आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं हो, Under grace. लेकिन अनुग्रह के अधीन। So the false grace is, जो नकली अनुग्रह है, it doesn't matter if you sin और उसके लिए अगर जो आप पाप भी करते हो तो उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता, because you're not under law. क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं Because हो, you're under grace, it doesn't matter if you sin. और क्योंकि आप जो है व्यवस्था के अधीन नहीं हो, इसलिए पाप करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। That is the false grace. और ये नकली अनुग्रह है। And people who have crept into the church unnoticed. और लोग जो है छुपके से अंदर आ चुके हैं। See, this creeping reminds me of snakes. और जो रेंगना है वो सांप को दिखाता है, Elephants and lions and all don't creep. और जो हाथी और शेर कभी रेंगते नहीं है। Creeping in unnoticed reminds me of a snake. और जो रेंग कर अंदर घुस जाना वो सांप को दिखाता है। How did these people creep in? और लोग रेंग कर कैसे घुस जाते हैं? Because the doorkeeper went to sleep. क्योंकि जो दरवाजे पर जो चौकीदारी कर रहा है वो सो रहा है। Every church must have a doorkeeper. हर एक कलीसिया में एक चौकीदार होना चाहिए। At least one among the 2 or 3 elders must be a strict doorkeeper. कम से कम 200-300 में एक व्यक्ति तो ऐसा होना चाहिए जो कि चौकीदारी करता हो। All the elders don't have to be strict. और दूसरों को जो है बहुत स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत नहीं। Like I say, among parents, father and mother, at least one of them must be strict. कम से कम माता पिता में से एक ऐसा होना चाहिए जो कड़क हो। Both don't have to be strict. दोनों को कड़क नहीं होना। But one, father or mother, must be strict. Otherwise, I guarantee the children will go astray. हाँ, कम से कम माता पिता में से एक व्यक्ति को तो कड़क होना चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। See what it says in Mark's Gospel. मरकुस की इंजील में क्या लिखा हुआ है? Jesus told a story about his going away and coming back प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसके जाने और आने के बारे में यहाँ पे बता रहा है as a parable. दृष्टांत के रूप में। Mark chapter 13. मरकुस 13 अध्याय। He compared his going away and coming back to this story. और वो इस दृष्टांत के द्वारा उसका आना और जाने के बारे में बता रहा है। Verse 34.
34। It's like a man going away on a long journey. और ये उसके समान है कि एक व्यक्ति बहुत लंबे सफर में जाता है। When he left his house, he put his slaves in charge, assigning to each one their task. तो वहां पे उसने अपने दासों को एक एक काम सौंपा और सौंप कर वो गया Yeah, each servant had a job. और अपने दासों को एक एक काम सौंपा। Among the servants, one was the doorkeeper. और उसमें से एक द्वारपाल था। And he told the doorkeeper, you especially must be on the alert. और उसने द्वारपाल से कहा कि तुझे जागते रहना है, उसको आज्ञा दिया। Like in some houses, they have a watchman at the gate. और कई घरों में देखा होगा चौकीदार रहते हैं। Everybody in the house can be asleep, but the watchman cannot be asleep. घर के अंदर सब व्यक्ति सो जाते हैं, लेकिन वो चौकीदार नहीं सो सकता, He has to be alert. उसको सावधान रहना है। So, when the watchman has gone to sleep, हाँ, जब वो द्वारपाल या चौकीदार सोने चले जाता है, then these snakes come creeping in. और उस समय ये सांप जो है रेंगते हुए अंदर घुस जाता है दरवाजे से। I have seen that happen in many churches. और ये चीज मैंने कई कलीसियाओं के अंदर देखा है, Because some elder is very lenient. क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जो बिल्कुल Yeah, they say we must be merciful like God is merciful. जैसे परमेश्वर दयावान है वैसे वो भी दयावान होते हैं, Yeah, we must definitely all be merciful. और हमें दयावान बनना है। I must be very merciful in my personal matters. मुझे अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए बहुत ही जो है दयालु बनना है। Whatever people do against me, I must forgive immediately. और लोग मेरे विरोध में जो कुछ भी करें मुझे उन्हें क्षमा करना है उसी समय। I decided that many years ago. और कई साल पहले मैंने ये निर्णय लिया। I decided that in my own interest because God says otherwise He won't forgive me. और अपनी पसंद से मैंने उसको जो है ऐसा चुना कि मुझे दूसरों को क्षमा करना है। He won't forgive me if I don't forgive others. अगर जो मैं दूसरों को क्षमा नहीं करता हूँ तो परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। I started with a selfish reason. और स्वार्थीपन से मैंने इसका आरंभ किया, शुरू किया, I want God to forgive me. और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे क्षमा करे, So I better forgive others. इसलिए बेहतर ये है कि मैं दूसरों को भी क्षमा करूं। But today, that is not the reason I forgive others. लेकिन आज ये कारण नहीं है क्षमा करने का। What started as a selfish reason और जो स्वार्थीपन से आरंभ किया has now become divine nature in me. और वो अद्वितीय स्वभाव बन गया है। That because Christ's nature has come to me, I want to forgive people. क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का खुद का स्वभाव ये है कि वो लोगों को क्षमा करता है। So today if God says to me, अगर जो आज परमेश्वर कहता है, okay my son, even if you don't forgive others, I'll still forgive you. हाँ, अगर जो तुम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो भी मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, I'll say, Lord, I still want to forgive others. तब भी मैं कहूंगा कि नहीं परमेश्वर मुझे फिर भी क्षमा करना है। Because now it is not a condition for going to heaven for me. क्योंकि अब ये कोई कारण नहीं है कि मैं उसको जकड़ के रखूं, It is nature. ये मेरा स्वभाव है। We start with a selfish reason. और एक स्वार्थीपन से हम शुरू करते हैं I want to forgive others because otherwise God won't forgive me. कि मैं दूसरों को क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि नहीं तो परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। I want to turn away from sin और मुझे पाप से फिरना है because I don't want to go to hell. क्योंकि मैं नरक में नहीं जाना चाहता। But that's not why I want to turn away from sin now. और ये कारण नहीं है कि मैं पाप से अब मन फिराऊं। I'm not avoiding sin because I'm afraid I'll go to hell. और इसलिए नहीं कि मैं क्या कहते हैं नरक में जाने से डरता हूं। I'm avoiding sin because it killed my Savior on the cross. क्योंकि मैं इसलिए करता हूं, पाप से दूर भागना चाहता हूं क्योंकि वो पाप के कारण मेरे उद्धारकर्ता को वहां पे It सूली is पर मरना पड़ा। my sin that nailed Jesus to the cross. मेरे पापों ने प्रभु यीशु मसीह को कील से ठोके। So if God says I'm going to send you to hell, I say fine, I still don't want to sin. और अगर जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नरक में नहीं भेजना चाहता, तब भी मैं कहूंगा कि नहीं, मैं पाप नहीं करना चाहता। Even if you send me to hell, Lord, I don't want to sin. हाँ, अगर जो तू मुझे नरक में नहीं भेजेगा तो भी मैं पाप नहीं करना चाहता। Can you say that? क्या आप लोग ये कह सकते हैं? Can you say to the Lord, even if you send me to hell, Lord, I do not want to sin. हाँ, अगर जो ये बोलेंगे कि हाँ, अगर जो तू नरक में भी भेजना चाहे तब भी मैं पाप नहीं करना चाहता। I don't want to. I hate it. क्योंकि मैं उससे नफरत करता हूँ। Because it killed my Savior. क्योंकि ये मेरे उद्धारकर्ता को मारा And है it is bad for me. और ये मेरे लिए बुरा है। Do you go avoid sin just because you get a reward that you'll go to heaven? और आप लोग जो है पाप नहीं करना चाहते क्योंकि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं। Supposing somebody says to you, I'll give you 10 rupees if you lick your toilet bowl. The toilet, if you lick it with your tongue, I'll give you 10 rupees. हाँ, अगर जो कोई बोलता है कि आप अपने टॉयलेट को जो है जीभ से चाटें तो मैं 10 रुपए दूंगा।
Will you do it? क्या आप करेंगे? Will you lick your toilet bowl if you're given 10 rupees? क्या आप 10 रुपए के लिए उस टॉयलेट को चाटेंगे क्या? How many will do it? आप में से कितने लोग करेंगे? Okay, I'll give you 100 rupees. Will you do it? मैं 100 रुपए दूंगा, तो क्या करेंगे आप? Let's raise the amount. 1,000 rupees. Will you do it? 1000 रुपए दूंगा तो करोगे क्या? You may do it for money. हो सकता है कि आप पैसे के लिए करें। But how many of you love to do it? आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं ऐसा करने के लिए? I just love to lick my toilet bowl. हाँ, मैं जो है बहुत प्यार करता हूँ अपने टॉयलेट को चाटने के लिए। Do you know sin is exactly like that? पाप भी इसी प्रकार से है When you say, I love to get angry. कि आप बोलते हैं कि मुझे प्यार है गुस्सा करने में, I love to turn to pornography on my computer. और जो है फोर्नोग्राफी या गंदी तस्वीरें देखना अच्छा लगता है। See that screen as your toilet bowl there with pornography there. और जो गंदी तस्वीर, अश्लील तस्वीरें हैं, उसको टॉयलेट की तरह देखें And you lick it. और आप उसको चाट रहे हैं। And not only that, you pay to put your credit card to lick it. और ना केवल चाट रहे हैं, उसके लिए आप पैसे भी चुका रहे हैं। Don't you think somebody will think you're mad? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग आपको पागल समझेंगे? You go to somebody's house and you see him licking the toilet bowl. और आप किसी के घर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ का आदमी जो है वो टॉयलेट बोल को And not चाट रहा just है। once, but every day. ना केवल एक बार, वो बार बार कर रहा है। You think he's off his head. क्या आपको नहीं लगेगा कि वो पागल है? That's exactly how Christians are. और वैसा ही है मसीह लोग भी। We don't know what's good for us. हम नहीं जानते कि क्या अच्छा हमारे लिए। Why do little babies put mud and stones and all into their mouth? छोटा बच्चा जो है मिट्टी और गंदगी क्यों अपने मुंह में डालता है? Why don't you do it? आप क्यों नहीं करते? Because you got some sense. क्योंकि हमारे अंदर जो है सोच विचारने के लिए दिमाग है। Do you know that when you sin, it is worse than those little babies putting stones into their mouth? जब आप पाप करते हैं तो वो छोटे बच्चे जो मिट्टी मुंह में डाल रहे हैं उससे भी बुरा है। We don't know what is bad for us. हम नहीं जानते कि हमारे लिए बुरा क्या है। We say, brother, I find it so difficult to overcome these sins. और बोलते हैं कि भाई इन पापों से बाहर आने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। That's why we want to remember this verse. इसलिए हमें ये वचन ध्यान देना है। Philippians 4:13. फिलिपियों 4 उसका 13। I can do all things, everything through Christ who strengthens me. और जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। If Jesus strengthens me, अगर जो प्रभु यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है, I can conquer every sin. तो मैं हर एक पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकता हूँ। That pornography that draws you every day, I want to tell you in Jesus' name, you can break that power and overcome it. और जो अश्लील तस्वीरें हैं जो आपको खींचती है अपनी ओर, उससे आप बाहर आ सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। That anger that makes you yell and scream and shout. और वो गुस्से की आजज़ जो आपको जो मजबूर करता है चिल्लाने के लिए, उससे आप बाहर आ सकते हैं। Jesus can set you free. और प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है, आजाद कर सकता है। Why does God allow you to fail again and again and again in all these areas? परमेश्वर क्यों अनुमति देता है कि आप बार बार जो है पराजय हो इन सब क्षेत्रों में? To show you, however hard you may try, you cannot conquer these. These are all too strong for you. वो आपको दिखाना चाहता है कि आप जितना भी मेहनत करें, आप इनके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। They will always conquer you. और वो आपके ऊपर जय प्राप्त करते But रहेंगे। if you allow the Lord Jesus Christ to have complete control of your life, लेकिन अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह को अनुमति देते हैं आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, He can set you free. तो वो आपको आजाद कर सकता है। I can say that from my own testimony. मैं अपनी खुद की गवाही से ये आपको बता सकता हूँ। I decided that every command in the Bible is for my good. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में दिया गया है वो मेरे भलाई के लिए है। You know, commands like forgive everybody, आज्ञाएं जैसे कि दूसरों को क्षमा करो, do everything without murmuring and complaining, और हर एक काम को बगैर कुड़कुड़ाए करें, be anxious for nothing, किसी भी बात की चिंता ना करें, do not love money, और पैसे से प्रेम ना करें, always rejoice, हमेशा आनंदित रहें, in everything give thanks. और हर एक चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। These are wonderful commands. और ये बहुत ही खूबसूरत आज्ञाएं हैं। And you say, how can I keep them? और मैं पूछता हूँ कि ये कैसे पालन कर सकता हूँ?
through Christ who strengthens me. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। See, you look at these bulbs up here. क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे बल्ब को? That bulb will say, और ये बल्ब कहेगा, I cannot burn without electricity. बगैर बिजली के मैं नहीं जल सकता। I want to burn. मैं जलना चाहता हूँ I long to burn, और मैं रोशनी देना to चाहता give हूँ light, और रोशनी देने के लिए पसंद है मुझे, but I can't do it. लेकिन मैं नहीं कर सकता। And so we say, okay, we'll send some electricity through you. तो हम बोलेंगे कि हाँ, कुछ बिजली को भेजेंगे। See what happens. तो देखिएगा क्या होता है। That is a picture of what we can do when Christ strengthens us. और यही तस्वीर है जब प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है। And you switch off the electricity, जब आप बिजली के खटके को दबाते हैं, it can try and try and try for 100 years, it will not burn. अगर जो ये खटका नहीं दबाते तो 100 साल तक भी मेहनत करेगा लेकिन वो कभी जलेगा नहीं। That is a picture of what you can do when Christ strengthens you. और यही तस्वीर है जब प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ देता है तो क्या होता है। And some of you are struggling to burn without the power of the Holy Spirit. और कई लोग, आप में से कई लोग जो है बहुत परिश्रम कर रहे हैं जलने के लिए बगैर पवित्र आत्मा के सामर्थ से। I might as well tell you right now, you will not succeed. और मैं बताना चाहता हूं कि आप कभी भी जय नहीं पाएंगे। So let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। While our heads are bowed in prayer, आइए हम अपने आंखों को बंद करके गर्दनों को झुकाएं। don't let what you have heard slip out of your mind. और ऐसा जो आपने सुना है वो आपके दिमाग से निकलने ना दें। Ask the Lord to imprint it strongly on your mind. और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो जो चीज़ें सुना है वो आपके दिमाग में लिख दिया जाए। Don't let the devil take it away. और शैतान उसको लेकर जाने ना दे। Lord, help me to realize that sin is harmful for me. परमेश्वर तू मेरी मदद कर ताकि मैं पहचान सकूं कि पाप जो है हानिकारक है। That I can never conquer it even any number of years in my own strength. प्रभु जी, मैं अपने सामर्थ के द्वारा कितना भी साल मेहनत करूं उसके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर सकता। But I can conquer every one of them through Christ who strengthens me. लेकिन हर एक विषयों के ऊपर मैं जय प्राप्त कर सकता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। Help me, Lord, not only to believe that but to experience it. प्रभु परमेश्वर, ना केवल बोलने के लिए बल्कि उसको अपने जीवन में अनुभव करने के लिए तू मौका दे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for giving us your word. धन्यवाद ये वचन देने के लिए। Help us to experience it in our life. और मदद कर ताकि हम अपने जीवन में अनुभव कर सके। Pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।